Good morning, dear student of class 8th. Myself, Pradeep Dubey, is your science teacher. Dear student, this is the second part of chapter 10, Reaching the Age of Adolescence, in which in part first I taught you about the period of adolescence and what changes takes place and what is the causes of these changes. Now we are going to explain you in this chapter reproductive phase of life in human. तो प्रोडक्टिव फेजेस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें adolescents became capable of reproduction at the puberty when their testes and ovaries begin to produce gametes, right? In females, reproductive phases of life begin at the puberty 10 to 12 and generally last till the age of approximately लगभग 45 to 50 years तक with onset puberty. यहाँ पे देखिए यू कैन चेंज अ थिक लाइनिंग ग्रो इन द यूट्रस. एक लाइनिंग ग्रो हो जाती है, थिक मोटी लाइनिंग यूट्रस में टू रिसीव द फर्टिलाइज एग रिसीव करने के लिए. इसमें देख सकते हैं दिस इज़ द यूट्रस, ये पूरा पॉट है. इन केस ऑफ एग सेल इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड द थिक यूट्रस लाइनिंग ब्रेक डाउन. अगर फर्टिलाइज नहीं मिलते हैं तो ये थिक लाइनिंग जो है ब्रेक हो जाती है और ब्रेक डाउन लीडिंग टू ब्लीडिंग, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है वेजिना से. और दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, राइट. दिस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. और ये देखिए विद द ऑनसेट पुबर्टी द एज begins to mature in the ovaries of human. One mature egg is released by one of the ovaries of the woman once in about 28 to 30 days. During this period, inner lining uterus grow and become thick, spongy, and prepares itself to receive fertilized egg. So, in case fertilization of egg occur by the sperm, fertilization egg cell begin to divide to form an embryo, or the embryo then get embedded in thick uterus lining. This results is pregnancy. इसी के कारण जो है प्रेगनेंसी होती है, which ultimately leads to the birth to a baby. We will now describe what happen if fertilization नहीं होता है. If fertilization does not occur due to lack of sperm, then the egg release by the ovary dies within a few days. कुछ दिन में मर जाती हैं. The thick lining breaks down, और जो थिक लाइनिंग होती है वो मर जाती है. Since the thick uterus lining breaks contain a lot of blood vessels, therefore the breaking down of uterus lining produce a blood along with other tissues. This blood and other tissues comes out of vagina of a human in form of bleeding. Bleeding from the uterus which occurs in human a mature girl every month. Egg cells has not been fertilized is called menstrual flow. Menstruation इसको बोलते हैं. ये जो है ये साइकिल होता है इनका, मंथली पीरियड होता है. 28 to 30 डेज में ये ब्रेक करता है एक बार, यदि फर्टिलाइज नहीं होता है तो, राइट. every day language menstruation is called monthly period or just period. The occurrence of menstruation period at puberty is called monarch. इसको जो पुबर्टी के दौरान होता है menstruation, इसको monarch बोलते हैं, राइट. The permanent stoppage of menstruation or period in women is called monopause, राइट, जो कि 45 या 55 एज में हो. menstruation cycle क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन एंड menstruation in women is called menstruation cycle because it occur again and again after a fixed time period. Menstruation cycle is period of about 28 to 30 days
during the lining takes place, and finally the uterus lining breaks down, causing bleeding in women. सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स इसको समझ लीजिए। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? द टू क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बेबी आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये 23 पेयर्स होते हैं। एक्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, इस फिगर में एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। एक्स एक्स स्टैंड फॉर गर्ल्स and XY stand for boys. If X chromosomes react with the X chromosome of a boys, it will XX means girls, right? गर्ल होगी, चाहे बेबी चाइल्ड जो है गर्ल होगी। अगर एक्स वाई से करता है तो बॉयज़ होगा। देखिए, मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, इनके लिए कुछ आध्यात्मिक चीज़ें भी हैं, या जो कहते हैं वाइडली हेल्ड्स बट फॉल्स बिलीफ इज़ नोन एज मिथ। वो फॉल्स बिलीफ होता है उसको मिथ बोलते हैं। समथिंग प्रोहिबिटेड बाय सोशल कस्टम इज कॉल्ड टैबूज। वी विल नाउ डिस्क्राइब द मिथ्स एंड टैबूज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। An important myth, wrong belief in minds of many people is that mother is responsible for sex for her child. ऐसा माना जाता है, but this is absolutely wrong. Scientific fact tells us that it is the father who is responsible for sex of child. जो है father होता है, साइंस कहता है। An important taboo in minds that many people is that a girl should not be allowed to work in the kitchen during the menstruation period. ऐसा ये सब एक तरह से फॉल्स मिथ्स हैं, अंधविश्वास हैं, इनको हमारे समाज में नहीं रहना चाहिए। राइट? गॉड हैज़ मेड वुमेन टू क्रिएट ह्यूमन लाइफ, ऐसा नहीं है। एडोलसेंस प्रेगनेंसी, गर्ल यंगर दैन 18 years of age are not prepared physically and mentally for मदरहुड के लिए, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है। अर्ली मैरिज मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन मदर्स एंड चाइल्ड्स। फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मदरहुड इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग अप द बेबी। अर्ली मैरिज मदरहुड curtails reduce the chances of higher education for girls. Early marriage motherhood curtail the employment opportunities for young girls. So this is the wrong myths. रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज a state of physical, mental and social well-being of a person in all matter relating to reproductive system at all stages of. It is necessary to eat balanced diet during the adolescence. It is necessary to maintain personal hygiene during the adolescence. It is necessary to take adequate physical exercise during the adolescence. It is necessary to avoid taking any drugs and during the adolescence. Right? न्यूट्रिशन नीड एडोलसेंस में आपको न्यूट्रिशन कंप्लीट बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट एडोलसेंस शुड इंक्लूडेड द फूड आइटम कंटेनिंग प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। दाल, पीस, बीन्स ये सब खाना चाहिए। डाइट ऑफ एडोलसेंस इंक्लूडेड फ्रूट, वेजिटेबल्स, मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन एंड एडोलसेंस, फिजिकल एक्सरसाइज ये सब बहुत ज़रूरी है। नो ड्रग्स एडोलसेंस एंड बहुत सी चीज़ें। हार्मोन्स अदर दैन सेक्स हार्मोन्स, देखिए कुछ हार्मोन्स हैं जो सेक्स हार्मोन से अलग हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड और इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस से अटैच होती हैं।
One of the hormones secreted by pituitary gland is growth hormone. ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। यहाँ पे हम कंप्लीट ग्लैंड देख सकते हैं इस फिगर में। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि नेम द ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्रोथ। एड्रिनल ग्लैंड है, इट इज़ जस्ट अबव द किडनीज। ओवरीज यहाँ पे हो गए, टेस्टीज यहाँ पे हो गए। इन फीमेल्स में होते हैं ये ओवरीज जो है फीमेल्स में होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, इधर दो होते हैं, दो टेस्टीज भी होते हैं मेल्स में। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ग्रोथ हार्मोन और बहुत से हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है, जो सभी को रेगुलेट करते हैं। थायराइड इज़ ए लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड इन द नेक। इट इज़ द अटैच टू द वाइन पाइप इन आवर बॉडी। डिफिशेंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स काजेज ग्वाइटर्स, इसके कारण से ग्वाइटर हो जाता है, घेगा रोग हो जाता है। पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन्स, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी में। इसलिए पैंक्रियाज जो है कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। पैंक्रियाज इज जस्ट अबव द स्टमक। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रिनाइल हार्मोन्स। एड्रिनल लाइन्स हार्मोन्स prepare our body to function maximum efficiency during the emergency situation like danger, fear, shock। इन सब के बाद रोल ऑफ हार्मोन इन completing the life history frog and insect। We have already studied the life history of frog। मेटामॉर्फोसिस, ये सब चीज़ें जो है हार्मोन्स के कारण ही संभव होते हैं। ग्रोथ भी हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी में न सीक्रेट करे तो आप बॉडी रह जाएंगे। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर। आई विल आल्सो सेंड यू question answer of this chapter. Thank you very much, good day।